دعا کریں گے. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور میری ریکویسٹ ہے بردر یاسر کے ساتھ کہ وہ تمام تر جتنی بھی ابھی تک میٹنگ ہو چکی اس کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں اور جو میٹنگ کا باقی ماندہ حصہ ہے اس کے لیے بھی دعا کریں. ہم سب کو آزادی ہے, ہمارا روح آزاد ہے, ہم خداوند میں آزاد ہیں, ہم سب دعا کر سکتے ہیں. ہمارے الفاظ خدا کو پہنچیں گے کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اس کا تخت لگ چکا ہے. پاک روح کا یہاں پر اس ٹائم موجود ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم سب مل کر دعا کریں گے. یاسر بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. ہاللویہ ہاللویہ. زندہ اور جلالی خداوند, رحم دل مہربان خداوند, تہہ دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے, اس گھڑی کے لیے. زندہ اور عثمانی خداوند, جب ہم ایماندار آپس میں مل کر اکٹھے ہوئے ہیں اے خدائی قدوس خداوند, کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ ایماندار جب اکٹھے ہوتے ہیں وہ مسا کی ہوئے تیل کی مانند ہوتے ہیں. اے خداوند, ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے پھر ایک موقع دیا کہ ہم مل کر آپ کی اس پیدائش کے دن کو منا سکیں. اے خدائے قدوس, ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ رب الفاظ آپ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہم اس بات کو واپس سے جانیں اور ایز اے ریمائنڈر اپنی لائف میں پہچانیں کہ مسیحا کیا ابھی تک ہماری زندگی میں پیدا ہوا یا نہیں, یا ابھی ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی. اے خدائے قدوس خداوند, ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ دعا کے باقیہ حصے میں زندہ عثمانی خداوند میٹنگ میں آپ نے بڑی رہنمائی کی زندہ عثمانی خداوند, اور ماندہ بچے وقت کو بھی آپ کے کبھی ہاتھوں میں دیتے ہیں. اے خدائے قدوس خداوند, ہر ایک شخص کو جو یہاں موجود ہے زندہ عثمانی خداوند, جسے میں شاید نام بنام نہیں جانتا لیکن آپ جانتے ہو, کیونکہ آپ کا مسا, آپ کا روح رب الفاظ یہاں موجود ہے, آپ کی حضوری اور آپ کی معموری یہاں موجود ہے. اے خدائے قدوس خداوند, یہ کرسمس, یہ آنے والا تہوار زندہ عثمانی خداوند, اے رب الفاظ ہم میں سے اے رب الفاظ بہتوں کی زندگی کو بدلنے کا باعث ہو زندہ عثمانی خداوند. یہ تہوار, یہ دن زندہ عثمانی خداوند ہم ایک نئے بدلاؤ کے ساتھ شروع کریں اور اپنی زندگی میں اپنی کالنگ کو پہچانیں اور آپ میں بڑھتے جائیں. یہ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین آمین آمین. اب وقت ہوا ہے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں. میں دعوت دیتا ہوں مسز شازیہ لیاقت کو کہ وہ آئیں اور آج ہمارے لیے کلام پاک میں سے تلاوت کریں گے. مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. آج میں آپ کے سامنے لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت سے تلاوت کروں گی, جس میں یوں مکتوب ہے, چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کمواری کے پاس بھیجا گیا, جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی, اور اس کمواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا, سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا کلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا, اے مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا, اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا. خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص کرتے ہیں. آمین آمین ہلیلویا. ہم سب اپنے آپ کو خداوند کے پاک کلام کے لیے تیار کریں گے. اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنیں. اسی حالت میں ہم دعائیہ حالت میں کھڑے رہیں گے, اور میں بردر ایمان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ خدا کے ممسوح کو, خدا کے خادم کو خداوند کی پاک حضوری میں دیں. ہم سب مل کر اپنے دلوں میں اور اپنے منہ سے اقرار کریں کہ آج کا کلام جو خداوند اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ کرنے کو ہے, یقیناً وہ ہمارے لیے ایک بار بار کلام ہوگا. ہاللیلویا. بردر ایمان کے ساتھ مل کر ہم
खुदावंद के पाक हजूरी के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद के मंसूब के लिए दुआ करेंगे ताकि आज तपाया हुआ कलाम हमें मिल सके। हालेलुया। अल्लाह को कायनात के मालिक और मालिक तेरी शफ़क़त आती है, आसमान तेरा ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदा हम जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तू मौजूद होता है। हमारे झुके हुए साथ इस चीज़ की ज़मानत है कि तू खुदा यहाँ मौजूद है। तेरा पाक रूह खुदा हमारे यहाँ जुम्बश कर आया है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए। खुदा आज के तेरे दुनिया में आने के दिन के लिए जिसमें खुदा पूरी दुनिया में नूर आ गया। तेरे बंदे को खुदा तेरे हवाले करते हैं, उसको साथ से लेके बहुत तक तू छू ले। आज का कलाम एक एक जान के लिए 100 गुना फल लाए। काम कह रब्बी और जलाली नाम में। आमीन। हालेलुया। आइए हम खुदावंद की जिंदा आवाज के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे और हम आवाज को वेलकम करेंगे। कलाम जो खुदावंद ने हमें दिया है वो शेयर करेंगे। हालेलुया। आप सब खुश हैं? हालेलुया। 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 खुदावंद के कलाम में लिखा है यही है दिन जो खुदावंद का है, हालेलुया। हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब तशरीफ रखें। खुदावंद के कलाम में से हम चंद एक और आयात अपने सामने रखेंगे। ये चैप्टर का 2 बाब सिस्टर जी ने भी 26 आयत से लेके 31 तक पढ़ा। चंद एक और आयात को अपने सामने रखेंगे। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है 39 वर्ष से हम पढ़ेंगे। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई। नासरत की रहने वाली अब ये यहूदा को गई है। 70 मील का फासला है। एक्साइटमेंट ये नहीं सी, एक अजीब काम हो गया। एंड शी इज वेरी हैप्पी। इस एक्साइटमेंट में ये फौरन उठी और अपने रिश्तेदार के घर चली गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई, क्योंकि जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान पे पहुंची बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाए, क्योंकि जो बातें खुदावंद के तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। तो आइए कुछ पल के अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को खुदावंद की आवाज सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया। पाक जी हम आपको वेलकम करते हैं आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। आपके बेटे, आपके बेटियां आपके तख्त के सामने सर नगून है। आप मुझे एक को छूइए और अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तरोताज़ा कीजिए, छूइए, बड़ी बरकत दीजिए। सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम। आमीन। हर साल क्रिसमस के मौका पे हमारे सामने यही चंद एक प्रोफेसीज हैं, यही चंद एक हवालाजात हैं और यही बैतलहम की नेटिविटी स्टोरी है। जैसे ही क्रिसमस आता है, मत्ती की अंजील, लूका की अंजील, हम इसमें से इस कहानी को, इन वाक़यात को फिर से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से मत्ती रसूल ने और जिस तरह से लूका तबीब ने इस सारे क्रिसमस के मंजर को कलमबंद किया, तहरीर किया, जिस तरह से उन्होंने ये सारी मंजर कशी की, इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। क्रिसमस स्टोरी के अंदर मजूसी है, चरवाहे हैं,
गडरिये हैं, सितारा है और बथेरे किरदार हैं जो इस कहानी के साथ जुड़े हुए हैं। But there is a beautiful message तमाम बनिनो इंसान के लिए, सिर्फ एक कौम, एक कबीले या एक जुबान बोलने वालों के लिए नहीं। It's a wonderful message। अरे मुनज्जी आ गया, नजात दहिंदा आ गया, उसका दुनिया में आना भी अजीब, उसका दुनिया से जाना भी अजीब। He is a wonderful counselor। वो अजीब था जैसे नबी की मौत पर कलाम किया गया। और मैं जब इन आयात को अपने सामने रखता हूँ, चंद एक ऐसी बातें हैं, 3 ऐसे नुक्ते हैं जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा कभी खिलवत में खुद भी कभी मौका मिले तो इन आयात पर गौर से इनका मुताला कीजिए, इन पर तवज्जो कीजिएगा और फिर देखो किस तरह से खुदावंद का रूह दिल की आंखों को रोशन करता है। मैं जब लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इन बातों को पढ़ता हूँ, इस वाक्य को अपने सामने रखता हूँ, तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट वर्ड, दूसरा पॉइंट विटनेस और तीसरा पॉइंट वर्शिप। सबसे पहला पॉइंट वर्ड, खुदावंद का कलाम हो गया। और जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, खुदावंद का कलाम कहता है जब्राइल फरिश्ता आ गया। जब्राइल फरिश्ता जिसका बाइबल में जगह जगह जिक्र है, जब्राइल फरिश्ता जब भी आया वही लेके आया। जब्राइल फरिश्ता जब भी आया आने वाले ज़मानों की बाबत बातें लेके आया। यहां पर जब्राइल फरिश्ता फिर आ गया। जब्राइल ये 2 लफ्जों का मुरक्कब है, गबर और एल। गैब्रियल दोनों मिलके गैब्रियल बन जाता है। गैबर का मतलब है जोर, एल का मतलब है यहोवा खुदावंद, मतलब खुदावंद का जोर। या गबर का एक और मतलब भी है बालग, मैच्योर। और एल का मतलब यहोवा खुदावंद, मतलब खुदावंद का भेजा हुआ बालग या बालग पैगाम। क्योंकि गब्रियल जब्राइल जब भी आया एक बालग पैगाम, एक मैच्योर मैसेज लेके आया। अब की बार भी जब जब्राइल आ रहा, इट्स अ वेरी मैच्योर मैसेज। ये एक बालग पैगाम था। और ये जब आया, इसने आके सलाम किया, लेकिन खुदा का कलाम कहता है मरियम हैरान थी और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। भाई सलाम कीता है, वो इस सलाम को सुन के ताज्जुब क्यों करने लगी? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सलाम अजीब था। हम जब यूनानी बाइबल खोलते हैं, वहां पे इस सलाम के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो एक वर्ड है खैरियो। खैरियो का मतलब है झुक के सलाम करना। और यहूदी कल्चर में औरत और बच्चों को कोई झुक के कभी सलाम ही नहीं करता था। उसने जब जब्राइल को देखा कि ये मुझे झुक के सलाम कर रहा है, जैसे शाही खानदान के बेटे बेटियों, शहजादों और शहजादियों को सलाम किया जाता है, वो ताजुब करती है अरे ये कैसा सलाम है। अरे उसमें फजल हुआ है, फजल हुआ इसलिए आसमानी मखलूकात झुक झुक के सलाम कर रही है। हर वो शख्स अरे जिस पे खुदावंद का हाथ है, जिस पे खुदावंद का फजल है, ना सिर्फ जमीनी अरे आसमानी मखलूकात भी उनके सामने झुकते और उन्हें सलाम करते हैं। You are a people of grace। अरे आप पे फजल हुआ है। अब वो जिस पे फजल हो जाता है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, वो फिर शाही खानदान का वारिस है। लेकिन उस वक्त मरियम इन बातों से शायद अनजान थी। वो कहती वो हमें लिखा हुआ किसने ताज्जुब किया, ये कैसा सलाम है। जब्राइल कहता था जब बताता सुन ले मरियम सदीका, सुन ले मोहतरमा, सुन ले। अरे तेरे नाम आसमानी मुकामों से ये पैगाम सादिर हुआ है। अरे एक मुनज्जी पैदा होने वाला है और वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा होगा। रूह कुदस तुझ पे नाजिल होगा। अरे खुदावंद का रूह तुझ पे साया डालेगा। वो बादशाह होगा, उसकी बादशाहत, उसकी किंगडम का कोई इंतहा ना होगा, कोई अंत ना होगा।
में तहरीर ना होगा, बल्कि अब की बात तो खुद कलाम मुजस्सम होगा। अब वो सहीफों में तहरीर ना होगा, अब लफ्जों में कलम बंद ना होगा, अब तो कलाम मुजस्सम होके आ रहा है। क्या लगता है आपको जबराइल कलाम लेके आया कि खुशखबरी लेके आया? अरे वो खुशखबरी लेके आया। जबराइल इस लायक नहीं कि कलाम लेके आए। अरे कलाम तो खुद मुसब्बिब है। अरे वो किसी सबब का मोहताज नहीं। अरे वो तो ज़ात मुसब्बिब है, वो तो खुद से है। वो इस चीज का मोहताज नहीं कि कोई उसको लेकर आए। जबराइल तो सिर्फ कलाम की खुशखबरी दे रहा है, कलाम तो खुद रूह कुदस की कुदरत से आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का पैदा होना, इस बात को गौर से सुन लीजिए। यीशु मसीह की पैदाइश, दैट इज नॉट मिरेकल। यीशु मसीह वैसे ही पैदा हुए जैसे बाकी बच्चे चले जाते हैं, जैसे बाकी बच्चे पैदा होते हैं। पैदाइश, उसकी बर्थ, ये मौजज़ा नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर जगह बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं। रूह कुदस की कुदरत से मां मरियम का हामला होना ये मौजज़ा है कि दुनिया में आज तक ना कभी हुआ और ना कभी होगा। That is the miracle, that is the Christmas. Hallelujah. यही पैगाम था। This is the message कि तू हामला होगी, रूह कुदस तुझ पे नाजिल होगा। अच्छा, नाजिल होने के लिए जो यहाँ पे ग्रीक वर्ड यूज हुआ है, एपिरकोमाई। एपिरकोमाई का मतलब है कवर, कवर कर देना। मतलब रूह कुदस जब आएगा वो तुझे कवर कर देगा। एपिरकोमाई का एक और मतलब है सुपरवाइज। मतलब रूह कुदस जब आएगा वो ना सिर्फ तुझे कवर करेगा बल्कि तेरी लाइफ को सुपरवाइज भी करेगा, वो तेरी सुपरविजन करेगा। फिर आगे लिखा हुआ और रूह कुदस तुझ पे साया डालेगी। साया डालने के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मतलब लपेटा पालना। मतलब रूह कुदस जब आएगा वो तुझे कवर करेगा, वो लीड करेगा, तो तेरे लपेटा भी पा के रखेगा। अरे ये हाल है हर उस शख्स का जिस पे फजल होता है। अरे जिसकी जिंदगी में यीशु आ जाता है, यीशु आ जाता है। रूह कुदस ना फिर सिर्फ उसकी लाइफ को लीड करता है बल्कि लपेटा भी पा के रखता है। हर नुकसान से, हर परेशानी, हर तूफान से रूह कुदस उसको महफूज करता है। हालेलुया। लेकिन एक चीज मेरे लिए बड़ी परेशान कुन थी। यही फरिश्ता इससे पहले देखो तो जकरिया काहिन के पास आया। अच्छा, याद रखना क्रिसमस की स्टोरी जो है वो यीशु की पैदाइश से नहीं, वो यूहन्ना की पैदाइश से स्टार्ट होती है। पहले पैगाम जो है वो जकरिया काहिन को मिला कि लो जी बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ बेटा पैदा होने वाला है, तुसी ਉਹਦਾ नाम यूहन्ना रखा। उसके बाद फिर मरियम के पास आया। लेकिन एक चीज जो मुझे परेशान कर रही थी, यही फरिश्ता था। पहले जकरिया काहिन के पास गया, फिर मां मरियम को भी आया। जकरिया काहिन को जब उसने मैसेज दिया कि बेटा होने वाला है, वो कहता हाउ इज दैट पॉसिबल, ही तो वडेरे हो गए। फरिश्ता कहता कि दुआ सुनी गई है। कहता दुआ तो जवानी च की सी, वो होना कि सुनी गई। फरिश्ते ने कहा कि हाँ, लेकिन उन बच्चों को यकीन नहीं किया। तू खामोश रहेगा जब तक कि उस बच्चे की पैदाइश ना हो जाए, जब तक यूहन्ना वो किस्मा देने वाला पैदा ना हुआ, तब तक जकरिया काहिन खामोश रहा। प्रॉब्लम यह था कि इसने आगे से आर्ग्यूमेंट कर दिया, आगे से क्वेश्चन पूछ लिया, डाउट किया। लेकिन यही फरिश्ता फिर जब मदर मैरी के पास आता है शहजाद, उथे भी फरिश्ते ने जो मैसेज दिया कि बच्चा पैदा होने वाला है, मदर मैरी ने भी आगे से आर्ग्यू किया, हाउ इज दैट पॉसिबल, मैं तो मर्द को नहीं जानती। जकरिया काहिन ने सवाल किया, उन्हें पनिशमेंट मिल गई। मदर मैरी ने सवाल किया, इन्हें पनिशमेंट नहीं मिली। दैट इज रॉन्ग। ये मतलब कि तुसी कुड़ी है कि फेवर कर रहे हो।
लेकिन व्हाट इज द रीजन? वाई जकरिया काहिन को क्यों पनिश किया आपने? और फिर मदर मैरी ने जब सवाल किया उसको क्यों छोड़ दिया? उसकी एक वजह यह है, जकरिया काहिन कोई 60 से 80 की उम्र के बीच में है और 30 साल की उम्र में काहिन अपॉइंट होता है। मतलब 30 साल से लेके 80 साल की उम्र तक ये शख्स कहानत का काम करता आ रहा था, सबक के सबक लोगों को वाज देता आ रहा था। ये ऐसा शख्स है जो सहीफों को, थियोलॉजी को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है और पुराना इकदाम भरा पड़ा जहाँ पे खुदावंद ने कई बार बांझ के रहम को खोला और औलाद का जन्म हुआ। ये तो वो शख्स था जो खुद खुदावंद के कलाम को अच्छी तरह जानता, खुदावंद के कलाम को अच्छी तरह पेश करने वाला था। अब जब तेरी बारी आई, हाउ यू कैन डाउट, अरे तू कैसे शक कर सकता है जबकि तेरे पीछे शहादतें हैं, कलाम है, सहीफे हैं और तू खुद कलाम की अच्छी तरह समझ रखता है। माजी में खुदावंद का रिकॉर्ड देख, हिस्ट्री देख, जो कल कर सकता था वो आज भी कर सकता है। यू आर हैविंग अ डाउट, शक किया तूने, खुदावंद का कलाम कहता है उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन जब मरियम ने सवाल किया, अब की बार उसका मुंह बंद नहीं किया जा रहा, क्योंकि तारीख में ना इससे पहले कभी ऐसा हुआ और ना इसके बाद ऐसा होगा। हिस्ट्री में कोई ऐसी शहादत ही नहीं थी जहां पे कुंवारी हामला होगी और बेटे को चलेगी। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। उसका क्वेश्चन वैलिड था, इसलिए जब वो सवाल करती है तो फरिश्ता उसको पनिश नहीं कर रहा, बल्कि फरिश्ता उसको एक्सप्लेन कर रहा है। हालेलुया। ये सुवास्ते जान की थोड़ी जोरदार बजाओ। पहली बात वर्ड, दूसरी बात विटनेस। फरिश्ता सिर्फ पैगाम लेके नहीं आया, नाल शहादत भी लेके आया, वो गवाही भी लेके आया। गवाही ये थी कि तेन पता थे रिश्तेदार रिश्ता और छठा महीना है क्यों नहीं है? छठा महीना, अच्छा फरिश्ता पहले महीने क्यों नहीं है? आगे दस मरे में रिश्तेदार का पहला महीना है या दूसरे महीने क्यों नहीं आया? वाई 6th month? फरिश्ता तब आया मरियम के पास जब अलिशबा को छठा महीना हो गया, क्योंकि खुदा उनको पता था इट्स अ स्ट्रेंज न्यूज। वो सुनेगी, वो हैरान होगी, वो ताजुब करेगी। इसलिए फरिश्ता सिर्फ पैगाम लेके नहीं आ रहा, साथ एक गवाही भी लेके आ रहा है। बाज़ दफा खुदावंद जिंदगियों में ऐसे ही काम करता है। इससे पहले कि खुदावंद आपके लिए दरवाजों को खोले, आपके इर्द गिर्द खुदावंद अपनी कुदरत, अपने जलाल को लोगों की जिंदगियों में जाहिर करेगा, ताकि जब आप ताजुब करो, जब दिल में सवाल और वसवसे उठे, हाउ इज दैट पॉसिबल, अरे कब होगा, कैसे होगा, तो आपके गिरदोनवा में ऐसी शहादतें मौजूद होंगी। उसकी जिंदगी में खुदावंद कर सकता है तो आपकी जिंदगी में भी कर सकता है। अगर उसके लिए दरवाजे खुल सकते हैं तो आपके लिए भी दरवाजे खुल सकते हैं। हालेलुया। छठे महीने में फरिश्ता आया, उसकी एक वजह थी। पहले महीने में आता तो उन्हें देख के पता ही ना लगता कि अलिशबा प्रेग्नेंट भी है कि नहीं। भाई ये तो वो काम है जो मेरे बातन के अंदर है। हाउ आई कैन टेल यू, ये तो मैं ही जानती हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन फरिश्ता छठे महीने में आया, क्योंकि छठे महीने की प्रेग्नेंट लेडी नजर आती है, वो पेट दिखाई देता है, फिर तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। फिर तो सिर्फ अलिशबा मरियम को देख के खड़ी हो गई, मरियम ने देख के यकीन हो गया, लो जी वाकई जो कलाम होया सी वो कलाम वाकई सच है, वाकई छठा महीना है। खुदावंद जिंदगियों में काम करता है। अरे खुदावंद आपके इर्द गिर्द बथेरी जालों के लिए रास्तों और दरवाजों को खोलता। आप नजर दौड़ा के देखिए, अगर किसी बात को लेके, फ्यूचर को लेके, अपने किसी इरादे, किसी प्लान को लेके डाउट है, शक है कि किस तरह से होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो आइए उर्दू सुहार चर्च में, अरे यहाँ पर खुदावंद ने आपके लिए बथेरी ऐसी शहादतें कायम रखी। लोग पुलपट के आगे नावी दसन, अरे उनका वजूद बता देगा। अरे देखो इस भाई से मिलो, इसकी जिंदगी में खुदावंद ने अपना जलाल जाहिर किया।
इसकी मंगनी थी यूसुफ से, बाकी कुड़ियां वांगू ने भी बथेरा कुछ प्लान कीता सी, दर्जी सूट भी दिते होंगे सीखण वास्ते, बथेरा कुछ प्लान किया था, हम यहाँ पे जाएंगे शादी के बाद, ये करेंगे, ये होगा। फरिश्ता पैगाम ले गया, सारे के सारे प्लान तेरे रह गए। खुदावंद ने इसके प्लान्स, इसके मंसूबों को इंटरप्ट किया, और खुदावंद ने इसके मंसूबों को रद्द किया, रिजेक्ट किया, और खुदावंद ने अपने प्लान्स इंप्लीमेंट किए। बाज़ दफा जिंदगी में ऐसे लगता है कि मैं जो चाहता हूं या मैं जो चाहती हूं वैसे नहीं हो रहा। अगर कभी लाइफ में ऐसा लगे या ऐसा महसूस हो कि मेरी जिंदगी वैसे नहीं चल रही जैसे मैं चाहता हूं या चाहती हूं, अरे मेरे प्लान्स, मेरे मंसूबे तकमील को नहीं पहुंच पा रहे, तो समझ जाइए गॉड इज वर्किंग। बाज़ दफा खुदावंद खुद रास्ते बंद खोलता है, और जो दरवाजे खुदावंद ने मुकर्रर किए होते हैं, खुदावंद वो दरवाजे आपके लिए खोलता है। उस वक्त तो शायद लोग ना समझ पाए, हाँ, मगर जब उस सूरत हाल, उस सिचुएशन में से लोग निकल आते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्र हो खुदावंद का कि मैंने वो फैसला नहीं लिया, अरे शुक्र है खुदावंद का कि मैंने वो कदम ना उठाया, शुक्र है खुदावंद का कि मैंने ये नतीजा ना भुगता, शुक्र है खुदावंद का कि मैं इस भाई के साथ या उस बहन के साथ मैं ना गया, खुदावंद का शुक्र है, अरे आज मैं जो कुछ भी हूँ ये खुदावंद की बदौलत हूँ। हालेलुया। बाज़ दफा खुदावंद खुद रास्ते बंद करता है, क्योंकि उसके पास आपके लिए आपकी निस्बत ज्यादा बेहतर मंसूबे हैं। उस वक्त तो शायद मगर मैनी को लगता हो सारे के सारे प्लान जड़े हिला के रख देते हैं। खुदावंद ने कई पे भी नहीं उससे पूछा व्हाट इज योर प्लान, अरे तेरा प्लान क्या है, आपका मंसूबा क्या है। खुदावंद को आपके और मेरे मंसूबों से कोई गर्ज नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि जो उसके पास है दैट इज द बेस्ट, उसके पास आपके लिए बेहतरीन मंसूबे हैं। हालेलुया। हम कैसे जाने कि खुदावंद हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। हम जब मरियम की जिंदगी पे गौर करते हैं, इसकी लाइफ में से आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होने शुरू हो गए। इन द एंड बैतलहम में सिर्फ अपने मंगेतर नजर आती है, नो फैमिली मेंबर। जब कभी लाइफ में ऐसा लगे कि आ भी छूट गया, वो भी छूट गया, तो वो भी छूट गया, डोंट बी अपसेट, गॉड इज वर्किंग। इसका मतलब कि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, और खुदावंद आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, और रोज रोज आपको अपनी नजदीकी में ला रहा है। हालेलुया। पहली बात थी वर्ड, दूसरी बात विटनेस, और तीसरी बात वर्शिप। खुदावंद का कलाम मुकद्दम 39 वर्ष से आगे पढ़ते हैं। फौरन की 70 मील का सफर तय किया ते यहूदा दे पहाड़ी इलाके में पहुंची गई। शी इज सो एक्साइटेड, अरे खुदावंद ने कलाम किया है, और लिखा हुआ है कि जैसे ही अपने रिश्तेदार लिशबा के घर गई, इसने सलाम किया, इसने सलाम किया, लिशबा रूह कुदस से भर गई। लिशबा भी खुश, मरियम भी खुश। लिशबा के ऊपर भी anointing, मरियम के ऊपर भी anointing, वो भी खुदावंद के प्लान में, वो भी खुदावंद के प्लान में, उसके ऊपर भी फजल हुआ, इसके ऊपर भी फजल हुआ। ये दोनों की दोनों ब्लेस्ड हैं, ये दोनों की दोनों नेमतों रूहानी बरकतों से भरपूर हैं, लेकिन ये एक दूसरे को देख के जेलस फील नहीं कर रही, एक दूसरे की बरकत, एक दूसरे की ब्लेसिंग को देख के ये हर्ट फील नहीं कर रहे, दे आर हैप्पी। अरे खुदावंद का हाथ इसके ऊपर है, शी इज ब्लेस्ड, ही इज ब्लेस्ड, शी इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। अरे ये मेरा भाई खुशहाल है कि खुदावंद का फजल इसके ऊपर हो, देयर इज नो जेलस। अरे ये है पुरफजल लोग, ये है खुदावंद के लोग जो एक दूसरे की तरक्की, ब्लेसिंग, खुशहाली को देख के हसद नहीं करते, बल्कि खुशी से भर जाते। अरे देखो मेरे भाई पे, मेरी बहन पे खुदावंद का फजल हुआ, अरे देखो खुदावंद ने इसको कैसा सरफराज किया। हालेलुया। दोनों ही खुश। अगली गालों में जैन सलाम किया, खुदावंद रूह कुदस लिशबा पे आ गया, व्हाट अ ब्लेसिंग,
मां मरियम ने किया क्या? सिर्फ कलाम को कबूल कर दिया, यीशु को अंदर ले लिया तो पाक रूह ना भर गई। अब देखो वो लोग जो पाक रूह से भरे हुए घर से निकलते हैं और दूसरियां गॉड ब्लेस यू कहते हैं तो पाक रूह ट्रांसफर हो जाता है, anointing ट्रांसफर हो जाती है। अरे किसी को शालूम भी क्या कीजिए, तुम्हारी सलामती हो। अरे इतना कह देने से ही आपकी anointing, आपकी blessing, आपका मसा दूसरे पर ट्रांसफर होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है बाबरकत लोग, ये है पुरफज़ल लोग जो खुदा का कलाम सुन के टुर नहीं पैंदे अगले जुमे फिर आएंगे। नो, अरे ये कलाम को सुनते, उसको अपने बातन में जज़ब करते, और जब ये कलाम अंदर लेके दहलीज को पार करते हैं, इनसे फिर anointing ट्रांसफर होती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का कलाम के अंदर ना सिर्फ अलिशमा खुदावंद की तारीफ करके ते मारे खुशी के बच्चा मेरे पेट में उछल पड़ा लो कर लो गल, जेड़ा बच्चा ये दुनिया च आया ही नहीं, जेड़ा ये जमे ही नहीं। अरे जो जनरेशन अभी आनी है वो आने से पहले ब्लेस्ड है, वो आने से पहले रूह कुदस से भरा हुआ है। ये है पुरफज़ल लोग, अरे जो खुदावंद के कलाम को सुन के उस पर अमल करते हैं, जिनकी जिंदगियां रूह कुदस की तहलील में होती है। ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनकी आने वाली नस्ल दुनिया में आने से पहले ही बाबरकत होती है, क्योंकि माँ बाप की anointing, माँ बाप का मसा बच्चों में ट्रांसफर होता है। हालेलुया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसलिए खुदावंद का जबरदस्त सुरमा था, पीछे माँ प्यो नु देखो। खुदावंद का कलाम बताता सब जगह अलिशमा, ये रास्तबाज थे, खुदावंद से डरने वाले। अरे वो जो अपनी जिंदगियां खुदावंद के खौफ में गुजारते हैं, खुदावंद उनकी नस्ल, उनके बच्चों को अपने जबरदस्त प्लान का हिस्सा बना के रखता है। मेरे लिए और आपके लिए क्रिसमस का मैसेज ये है, मैं और आप भी वही कहें जो मां मरियम ने कहा था, कंप्लीट सरेंडर। इसको पैगाम मिला, इसने पूरा सरेंडर किया, कहते तेरे कॉल के मुआफिक हो, मेरी जिंदगी में खुदावंद तेरा प्लान, तेरा मंसूबा पूरा हो। हालेलुया, दिस इज द टाइम, दिस इज क्रिसमस। पूरा साल खुदावंद से कुछ ना कुछ मांगा, आज देने का टाइम है। व्हाट यू विल गिव टुडे, आज आपके पास क्या है उसको देने को। आप क्या लेके आए हो? हदिये नजराने नहीं चाहिए, आपके बातों में एक दिल है वो चाहिए। Are you ready to give? क्रिसमस ये देने का भी नाम है। सरेंडर कीजिए आज अपनी जात को, अपनी जान को, जैसे मां मरियम ने कहा, अरे मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तो आओ फिर आज हम भी इस क्रिसमस के मौका पे करार करें कि मेरी जिंदगी में खुदावंद तेरे कॉल के मुआफिक हो। हालेलुया, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने कदमों में खड़े हो जाएं, अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया, कोई खामोश न रहे। ओ ये बड़ी खास घड़ी है, खुदा उनका रूह यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है। अपने लोगों को खोले, वो आज आपकी आवाज सुनना चाहता है। क्या आज मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ? अरे कलाम वो हो चुका, क्या मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ? आवाजें कम है, खामोश न रहे। Hallelujah, hallelujah. अरे खामोश मत रहिए, this is the time to speak.
इस जहान में, इस दुनिया में आए। मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद यीशु जी, आपके लोग जो आपके मस्बा के सामने हैं, एक एक जान को छूइए, एक एक बेटी को छूइए, छूइए छूइए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। आए उस मनत जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और बच्ची खुदावंद आपको मुबारक कर दे, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस।